Hello, good morning to all of you. And today I will teach you uh, number system of class 9. So before teaching, I want to talk with you something. All of you, class 9, that please subscribe this channel. If you like or don't like, whether you don't like or don't like, doesn't matter. But at least comment. Especially for my student of my school, I am requesting to all of you, please subscribe this channel, share this channel with your classmates, and comment on the comment box, because without your comment, how can I know that all of you are watching my videos or not? So it is very necessary, and I am requesting to all of you again. Okay, so now let's start uh, the rest of the class of number system. There are 3 videos I have uh, given all of you. If you didn't watch this, then if you not watch, then please go on the playlist, and you can watch remaining videos of concerning नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी वीडियोस है आप देख सकते हो, तो आपको पीछे की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, so how there is how all of you know from your childhood, from at least class 5 6, to convert any fraction into decimal numbers and any decimal numbers into fraction. Probably all of you know, but today I will teach you again in another way, in another concern, दूसरे तरीके से, दूसरे वे में बताऊंगा. There are two types of decimal numbers, that is terminating decimal numbers, and the second one is non-terminating and reoccurring decimal numbers. तो आज मैं ये बताऊंगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है. हालांकि ये however I have taught this topic on your previous videos, but once again I will repeat. There are two types of decimal numbers. The first one is terminating decimal numbers, and the second one is non-terminating decimal numbers. And thereafter I will teach you how will you convert terminating decimal numbers into fraction and non-terminating and reoccurring decimal numbers into fraction. So let's start. First one type is terminating decimal numbers. Suppose that 1 by 2 equal to 0.5. This is a terminating decimal number because digit has been stopped. ये नंबर्स यहीं पे रुक गए, आगे नहीं जा रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे. तो दिस इज terminating decimal numbers. And the second one is non-terminating but reoccurring decimal numbers. Second one is non-terminating but reoccurring decimal numbers. As for example, 1 by 3. If you divide 1 by 3, 0.01.0, 3 3 are 9,
3 3 जा 9, इसी तरीके से so on 3 up to the infinity. You can write this 3 3 3 up to infinity. So you can write 0.3 to the power 3 बार. इसको 0.3 बार कहा जाता है. ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन स्टॉप, रिपीट नहीं होने वाला. ये रिपीट, दिस इज नॉट रिपीट, दिस इज रिपीट होने वाला, यानी कि दिस इज रिपीटेटिंग, मेकिंग अ रिपीटेटिंग ब्लॉक ऑफ 1 डिजिट, and this is not a stopping up to infinity. So how could you represent this number? You can represent this number by 0.3 bar, by this sign. Okay, and this is terminating decimal numbers and non-terminating but reoccurring decimal number. The same digit is reoccurring again and again, so this is called non-terminating but reoccurring decimal numbers. I have told you in your previous videos, and now I will teach you how can you convert decimal numbers, non-terminating on reoccurring decimal numbers into fraction. Let at first, to solving this type of question, we have to know, we have to suppose something. So let x equal to 0.333 up to infinity, so 0.3 bar. That is equation first. Now multiply with 10 in equation first. So 10x equal to 3.333 equal to 3.3 bar. Yes, इक्वेशन सेकंड. आप ये भी कर सकते हो कि हाउ, why do you multiply with only 10? Why don't you multiply with 100? So look at this, at terminating block there is one digit that is making terminating decimal numbers, and there is one digit after decimals. In that case we have to multiply this type of number with 110, यानी कि 10. So that's why I will multiply with 10. And now subtract with subtract equation first.
from second, and 10x minus x equal to 3.3 minus 0.3. That means it means 9x equal to 3.13. In rough box you can see that 3.3 minus 0.3 equal to 3.0 equal to 3. So this is 3. You can see now x equal to 3 by 9. Now you can change this number in this simplest form of the fraction. 3 3 is 9, so you can write 1 by 3. तो आप इसको 1 by 3 भी लिख सकते हो, और ये फ्रैक्शन जो है 1 by 3 आ गया. तो now how could you know you have changed in fraction? You have changed this fraction is right or wrong. So let's divide 1 from 3. So 0.0 3 3 is 9, 1 0 3 3 is 9. That will be repeating. No, ये मैंने सही किया है, ये भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे. अभी इस तरीके से आपने नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल नंबर को चेंज कर दिया. होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा. जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको तो चेंज करना बहुत आसान है, वो आप लोग पढ़े भी होंगे नीचे की क्लासों में और जानते भी होंगे. तो मैंने आपको डायरेक्टली नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया. यू कैन राइट डाउन नाउ दिस क्वेश्चंस. thereafter I will teach you the second type of questions. So this is your homework. At your home you can do this type of question. You can solve this type of question, and after opening of school I will check your homework. So write down. Now I will teach you second type of questions. Second type of question is 1.3. There is only in previous question there is only one digit, and before decimals there is no digit, यानी कि 0.3 था, 0.5 था, बट डेसिमल्स के पहले कोई नंबर नहीं था. अब ये जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो डेसिमल है उसके पहले भी कोई नंबर है, और इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन में हम बताएंगे. ठीक है. सो एट फर्स्ट लेट x इक्वल टू 1.333 इक्वल टू 1.3 बार. इक्वेशन फर्स्ट. Now multiply with equation 1 multiply with 10. So 10x equal to 13.3. Equation 2. Now subtract 2 from 1. So 10x minus x equal to 13.3 minus 1.3. It means 9x equal to 12. So x equal to 12 by 9, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अब लाएंगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. एंड नाउ यू कैन चेक
your answer is right or wrong. Whether your answer is right or wrong. So in this side I will check your answer and show you, all of you, is it right or wrong. So divide 4 by 3, 3 1 is 3, 1.0, 3 9 is 3, 1 0, 3 9 is 3, 1 up to infinity. So you can say that your answer is right. Okay, please write down these questions. And this is your second type of homework. I have told you, teach you second type of examples to converting non-terminating decimal and reoccurring decimal numbers into fractions. So this type of questions you can solve that. You can solve now, and this is your homework. Write down please. And after this I will teach you another type of questions. अब आपको मैं यहाँ से अलग तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा, यानी कि अभी तक जो मैंने बताया था उसमें जितने भी डेसिमल्स थे उसके बाद का जो रिपीटेटिंग ब्लॉक था वो 1 डिजिट का था, मतलब कि उसके बाद एक ही डिजिट था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डेसिमल्स के बाद 2 नंबर होंगे और रिपीटेटिंग ब्लॉक 1 डिजिट का होगा, लाइक दैट 1.35। It means 1.3555 up to infinity। यहाँ पे जो रिपीटेटिंग ब्लॉक है 1 डिजिट का, 3 रिपीट नहीं कर रहा है। ओके, 3 is not repeating digit is only 5, so that is repeating block that is repeating again and again is only 5, is one digit. So let's solve this type of questions. At first, like all questions, let x equal to 1.35. Equation first. Now you can say that there is 2 digits after decimals, but you should know that repeating block is only 1 digit. So multiply equation first with 10. There is no need to multiplying with 100, क्योंकि रिपीटेटिंग ब्लॉक तो एक ही डिजिट का है और वो लास्ट डिजिट है। ओके, सो मल्टीप्लाई विथ 10, तो 10x इक्वल टू 13.5, दैट इज इक्वेशन सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 9x after multiplying with 10, 10x equal to 13.5. Now again multiply with 10 in equation first, second 10, then 10x into 10 equal to 100x equal to 135 minus 135.5 bar, that is equation third. Now subtract equation second minus equation third, then 100x minus 10x equal to 135.5
माइनस 13.5 बार। That means it means 90x equal to 122. So x equal to 122 by 90. That will be your fraction. Now let's check is your answer right or wrong. चेक करते हैं इसको। तो 122 को 90 से डिवाइड करते हैं तो 91 है 90, 2 आता है इधर 3 आता है, फिर पॉइंट 93 है 270 और फिर यहाँ पे आ जाता है 50, फिर एक 0 500 तो 95 जा 540, फिर 50 फिर एक 0 करेंगे तो 95 जा 540 440 450, देन ये 50 रिपीट होगा, ये 5 इस तरह से रिपीट होते चला जाएगा, यानी कि जो मैंने कन्वर्ट करके लाया है फ्रैक्शन वो सही है। तो इसको एक बार फिर अच्छे तरीके से हम समझा दे रहे हैं। 1.355 बार ये है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो लेट x इक्वल टू 1.35 बार। नाउ मल्टीप्लाई 1 विथ 10। इसमें 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जो रिपीटेटिंग ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है वो 1 डिजिट के बाद बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले उसको क्या करना है कि एकदम रिपीटेटिंग ब्लॉक को जस्ट डेसिमल के बगल में लाना है। तो डेसिमल के बगल में लाने के लिए क्या करना होगा, 3 को इस साइड लेकर के आएंगे। तो 3 कितना है, डेसिमल की जस्ट 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट को इधर लाना है, तो उसके लिए हम 10 से मल्टीपल करेंगे। तो इस हिसाब से हम 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10x इक्वल टू 13.5। इस तरीके से सोचिए कि सबसे पहले करना क्या है, 10 से मल्टीपल करना है, 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या करेंगे 1 डिजिट इधर आएगा। तो 10x इक्वल टू 13.5 बार। अब जब मान लो 10x माइनस x करते हैं, सपोज इधर आपको दिखा रहा है, तो 10x माइनस x करेंगे तो 9x हो जाएगा, और इधर क्या होगा 13.5 बार में से माइनस 1.35 बार। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ जाता है, एक रिपीटेटिंग ब्लॉक बना रहा है और एक विदाउट रिपीटेटिंग ब्लॉक का है, और इसमें डेसिमल के बाद ओनली एक ही रिपीटेटिंग ब्लॉक बना रहा है। So it could not be possible. So for simplifying this type of problems, we should again multiply with 10. So now we will multiply with 10 in equation 2. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए और क्या करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो जब इक्वेशन सेकेंड में मल्टीपल करेंगे तो ये 100 हो गया और यहाँ पे 135.5 बार हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पे लेस करते हैं, तो 100x माइनस 10x और यहाँ पे 135.5 बार माइनस 13.5 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90x इक्वल टू 122। तो x इक्वल टू क्या होगा 122 बाई 90। अब यहाँ पे हम डिवाइड करके देख रहे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो 91 जा 90, फिर 270 93 जा, फिर यहाँ पे 5 आएगा तो 500 हो गया, 95 जा 450, फिर यहाँ पे 50 आता है, फिर डेसिमल है तो 10 आएगा, फिर 95 जा 450, फिर 50 यहाँ पे आया, फिर एक डेसिमल है तो 0 आएगा। इस तरह से 5 रिपीटेटिंग ब्लॉक के रूप में रिपीट होते चला जाएगा, 1 डिजिट और 3 जस्ट वैसे नहीं रहेगा, जस्ट मतलब कि 1.35 बार यहाँ पे आ जाता है। मींस हमने जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है वो सही करा है। इस तरह से आप भी कन्वर्ट करके और उसको फिर चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को कि आपने जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है वो सही है या नहीं। एक बार फिर से ध्यान से इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पे 1.35 बार है, जस्ट डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो कि रिपीटेटिंग ब्लॉक नहीं है, और उसके बाद ठीक एक डिजिट है जो रिपीटेटिंग ब्लॉक बना रहा है।
तो डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसे ही है जो कि रिपीटेटिंग नहीं है, और दूसरा डिजिट है उसमें 12 है, यानी कि वो रिपीटेटिंग है। तो ऐसे में हमको क्या करना है कि जस्ट सबसे पहले 10 से मल्टीपल करेंगे, तो 10x इक्वल टू 13.5 बार हो जाएगा। अब 10 से मल्टीपल करने के बाद अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x माइनस x जैसे कि औरों में किए थे, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, और यहाँ पे 13.5 बार है, और उसमें से 1.35 बार को हटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। देखो यहाँ पे 13.5 बार लिखते हैं और उसमें से 1.35 बार यहाँ पे है। अब ये सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? यहाँ पे तो 5 1 ही डिजिट है जो रिपीट कर रहा है फर्स्ट टाइप्स ऑफ में। अब सेकंड में क्या है? 1 है, 1.35, तो 5 रिपीटेटिंग ब्लॉक है और 3 और एक्स्ट्रा डिजिट है, तो ऐसे में ये नहीं होगा। दोनों ऐसा नंबर चाहिए कि डेसिमल के बाद जस्ट ओनली 1 रिपीटिंग ब्लॉक इसमें भी रहे और इसमें भी रहे। तो फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड विथ 10 अगेन। तो फिर से करेंगे तो ये 100x आ जाएगा और यहाँ पे 135.5 आएगा। तो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फिर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में से 10x इधर जाएगा, RHS की तरफ देखते हैं तो, और इधर 130.5 रिपीटेटिंग ब्लॉक है वो रहेगा, 5 एक ही डिजिट है, और यहाँ पे 13.5। अब इसको सिंप्लीफाई करके आराम से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक रिपीटेटिंग ब्लॉक इधर भी है और एक इधर भी है। इसको सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो 90x इक्वल टू यहाँ पे 5 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे 13.5 135.5 और यहाँ पे 13.5 यहाँ लेस करेंगे तो ये दोनों 5 तो एक तरफ चला जाएगा और यहाँ पे आकर के 122 हो जाएगा। तो x इक्वल टू इधर 90 आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 122/90 ये फ्रैक्शन ही सही होगा। और जब हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे तो जस्ट 1.353535 इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से जब इस टाइप का नंबर होगा तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो। सो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। जस्ट इस वीडियो में हम इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो कि आपका होमवर्क है, जब भी कभी आप स्कूल आए तो उसको हम चेक करेंगे।